ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਵੀ? ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो जी, मैं कनाडा अकेला क्यों करूं या ऑस्ट्रेलिया अकेला क्यों करूं? मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA हर एक के लिए मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, मतलब कंसल्टेंट हूं। हर एक कंट्रीज की मेरे पास स्पेशलिटी है। तो जब मैं एक अमृतसर, जलंधर, लुधियाना या पटियाला आ रहा हूं, तो क्यों ना मैं सिर्फ कनाडा वाले बच्चों से बात करूं, मैं ऑस्ट्रेलिया वालों से ही बात करूंगा, मैं USA वालों से ही बात करूंगा। मीन्स वी हैव द स्पेशलिटी फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। तो यही एक रीजन है कि वर्ल्ड एजुकेशन फेयर है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी आइए, न्यूजीलैंड वाले भी आइए, कनाडा वाले भी आइए, USA वाले भी आइए, अगर बच्चे की आइल्स नहीं है तो आइल्स वाले भी बच्चे आइए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ कंट्री तक? डेफिनेटली देखो, डिपेंड करता है हर एक कंसल्टेंट्स का अपना काम करने का तरीका है। पीछे देखा जाए, हमने न्यूजीलैंड के भी सेमिनार किए थे, कनाडा के भी किए थे। तो अब एक ऐसी चीज है, क्योंकि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया वाले बच्चे काफी डरे हुए हैं, तो हमने वर्ल्ड एजुकेशन फेयर इसलिए रखा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया वालों को भी एंटरटेन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया वालों को करदा ही कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले कॉल भी नहीं करता है जी, वेस्टर्न ओवरसीज करता है। मेरे ओपन स्कूलिंग के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सबके वीजे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टूडेंट्स आके सेमिनार्स में मिल सकता है, हम स्टूडेंट्स को के मतलब पूरी बाइट साथ लेके आएंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आज की डेट में अगर बच्चा GT क्राइटेरिया मीट करता है तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी वीजे आ रहे हैं, या हरियाणा बोर्ड के भी आ रहे हैं, हिमाचल बोर्ड के भी वीजे आ रहे हैं। 4 मई ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, 6 ਮਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ 7 ਮਈ ਪਟਿਆਲਾ। ਵੈਨਿਊ ਸਕਰੋਲ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅਭੀ ਕੈਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟ ਪੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ सिर्फ कवर करता है सितंबर इनटेक, या कोई खास रीजन रहता है? देखो सर, इस टाइम पे क्या होता है, तो हमारे बच्चों के पेपर खत्म होते हैं, पहला रीजन, और वहां पे इनटेक स्टार्ट होने वाला होता है सितंबर इनटेक, और इसके बाद फिर जैन है, जैन के बाद फिर मई है। तो ये एक राइट टाइम होता है। इस टाइम बच्चा एक ऐसे क्रॉस रोड पे होता है, एक ऐसे चौराहे पे होता है, उसको ये नहीं पता होता कि मुझे कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंडिया में ही करना है या USA जाना है। तो इन फेयर्स का एक यही पर्पज होता है, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस के डेलीगेट्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट्स आते हैं, क्योंकि उनको भी बिजनेस चाहिए। सर, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਦੋਂ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਇਧਰ A ਕਾਲਜ, B ਕਾਲਜ, C ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ। स्टूडेंट अवेयर हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है? सर देखिए, इसमें कनाडा की बात नहीं, इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के भी आते हैं, न्यूजीलैंड के भी आते हैं। नहीं, मैं खास कनाडा की एग्जांपल लइए सर। इससे देखिए, एक्सेस इज ऑलवेज बैड, ये बात तो ठीक है कि कोई भी चीज ज्यादा हो तो उसकी अति होती है, बट ऐसा भी नहीं है कि जब अगर बच्चे समझदार हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स समझदार हैं, तो उनको एक चांस है, इसको एडवांटेज लेना चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो मीन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज डिफरेंट कंसल्टेंट और रीजन से मिलने का मौका मिल रहा है। सर, अब स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि विच वन इज बेस्ट फॉर हिम। सर, या तो ये होवे ना, स्टूडेंट पहले कंसल्टेंट को विजिट कर चुके हैं, उन्हें एक A या B कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली भी मैं इत्थे जाना है जी, ये कोर्स करना है इत्थे, मेरे रेलेवेंट है, कंसल्टेंट ने भी दस्सिया।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰॉपरली ਉਹਦੇ ਲਈ प्रिपेयर है। एक बच्चे ਨੂੰ प्रिपेयर नहीं किया जा रहा। प्रिपेयर तो सर कहीं से भी हो सकता है, वो सेमिनार्स में मिलके, ठीक है, जैसे आपने बोला ऑफिस आए, सेमिनार में चार पांच सेमिनार्स में डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, काउंसलर्स बैठे हुए हैं, मैं खुद बैठा हुआ, मिलो भाई, पहले मिलो सर। मैं वही कह रहा पहले कंसल्टेंट ਨੂੰ ਮਿਲੇ। हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ 10 ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, सीधा ही बच्चा जाके हर कॉलेज में मिलता है, तो मेरे ख्याल कंफ्यूज ज्यादा होएगा। सर इस सेमिनार्स का फायदा ये होगा, जब बच्चा सामने आएगा, जब सेमिनार्स में एंटर होगा, तो एग्जीबिशन में एंटर होगा, तो स्टूडेंट्स को पहले रिसेप्शन पे इंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर हर एक कंट्रीज की काउंसलर्स मेरी होंगी, ठीक है, वो बताएंगी स्टूडेंट्स को भी तूने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर दीज आर द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से आप किसी न किसी में जा सकते हो। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है तो ये हम वेस्ट मोसीज रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इतनी यूनिवर्सिटीज के यहाँ बंदे बैठे हुए हैं, आप उनसे मिलना चाहो तो उनसे मिल सकते हो। तो यहाँ दोनों चीजें कंप्लीट हो रही है, वो सिस्टम है ना, पर्टिकुलर हर एक यूनिवर्सिटीज कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, साथ साथ में कुछ कॉलेजेस से मिलवाने का मौका भी मिलेगा। और सर मेरा स्टूडेंट्स के पास आने का सिर्फ एक ही मोटिव है। आज मैं जब आपके स्टूडियो में आया हूं, इससे पहले जब मैं अपने चंडीगढ़ ऑफिस में बैठा था, तो कैन यू बिलीव 7 बंदे मेरे से मिलके गए। 7 बंदे में से एक सिरसा से था, एक अमृतसर से था, जलंधर, जम्मू, बठिंडा। वो आपके टीवी के माध्यम से कि भाई प्रदीप जी आपको टीवी पे देखा था, हम आपसे रूबरू मिलना चाहते थे, हम और भी कंसल्टेंट हैं उनको भी देखते हैं, लेकिन आपके को सुन के कुछ ज्यादा मजा आता है। देखो मैं अपनी खुद नहीं बोलता, ये मेरे जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं हूं, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं कि यार वास्तव में एक जेन्युइन बंदा आके बैठा है, और मुझे अच्छा लगता है सुन के, मतलब यहाँ सब कुछ कवर हो गया इन चीजों से कि भाई यार जब पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्टूडेंट बोलते हैं कि यस यार यू आर द जेन्युइन वन, तो मैं पूछता हूँ सर ऐसा क्या है जिससे आपको मेरी जेन्युइनिटी पता लगती है कि भाई आपने टीवी पे देखा मुझे, उसके अलावा नहीं है। बोले सर जो आप टीवी पे बोलते हैं वही आप एक्चुअल में भी हो, ठीक है, एक्चुअलिटी में भी वही डील कर रहे हो। सेकेंडली जब तक टीवी पे और भी बंदे आते होंगे, ठीक है, बोले और भी आते हैं, तो हर चैनल पे आते हैं, बोले पता लग जाता है यार कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन बंदा सच बोल रहा है। तो सर अमन सर इन चीजों से पता लगता है वास्तव में हम एक राइट पाथवे पे हैं। जब उनके पेरेंट्स हमारे तक चंडीगढ़ में आ सकते हैं, तो क्या सर हम उनके शहर में नहीं जा सकते? इसीलिए इन सब चीजों को सोचते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए मैंने पटियाला, जलंधर, अमृतसर और लुधियाना ये सेमिनार रखे हैं। और जैसे ही मैं अभी इसके जस्ट बाद मुझे कनाडा जाना है, और कनाडा से आने के जस्ट बाद मैं फिर जो और सिटीज बचते हैं वहां भी उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मिलकर मैं सेमिनार्स करूंगा। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ प्रोफाइल है जिन्होंने सद्दा देना चाहिए? देखिए सर जो स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहता है हर एक स्टूडेंट्स मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होगा। 12th पास हो, रिसेंट पास आउट हो, या साल 1.5 साल 2 साल तक का गैप हो, 2014-15 14-15 तो मोस्टली 14 में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स को 14 में पास है तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा उसने किया क्या है, कोई कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है। और लास्ट एजुकेशन में 50% मार्क्स हो, और मेजर 4 सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स हो, और IELTS 6 बैंड नो लेस देन 5.5। जिस बच्चे का IELTS नहीं आता तो हमारी वहां पे ब्रिटिश काउंसिल की IDP की ट्रेन फैकल्टी होंगी, बच्चों को गाइड करेंगे आप 6 और 6.7 बैंड कैसे ले सकते हो। तो एक तो वो बच्चा जिसका IELTS क्लियर है और उसकी परसेंटेज कवर है, एक वो बच्चा जो परस्यूइंग है जिसका रिजल्ट अवेटेड है और IELTS भी अवेटेड है, तो उनसे भी मिला जाएगा, उनको भी कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए मोटिवेट किया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होने के बाद उनका वर्क एक्सपीरियंस है, या सिंपल ग्रेजुएट है या मास्टर्स है, तो फर्दर आगे कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं उस हिसाब से उनको भी मोटिवेट किया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा। काफी बच्चे ने ਜਿਹੜੇ ओपन स्कूल तो पास आउट्स ने ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ पॉसिबिलिटीज की ऑप्शंस ने? सर सिचुएशंस देखी जाएंगी, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा टोटली बंद आप बता रहे हो कि भाई वीजा बहुत कम आ रहे हैं, लोग मतलब प्रमोट नहीं कर रहे, हम नहीं बता रहे, हमको लोग बता रहे हैं। लेकिन सर आज की डेट में वीजा आ रहा है। अभी मेरा एक अंसराना स्टूडेंट्स, ठीक है, 10th उसकी CBSE, 12th उसकी NIOS ओपन स्कूलिंग बोर्ड, उसका सर हफ्ते के अंदर वीजा आया विदाउट इंटरव्यू, ऑस्ट्रेलिया का। तो डिपेंड करता है केस टू केस। एक बच्चे का अगर होना होगा तो डेफिनेटली हम उस केस को उठाएंगे, अगर उसका नहीं होना होगा तो नहीं उठाएंगे। जैसे अगर देखा जाए
उसने 2009 या 10 में तो 10th कर ली और 2015 में वो 12th कर रहा है ओपन स्कूलिंग से, तो हम तो दूर से हाथ जोड़ेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स का वीजा नहीं आएगा, ना उसको ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा, ना कनाडा देगा, ना यूएसए देगा, या ना ऑस्ट्रेलिया देगा। अब देखना ये है ओपन स्कूलिंग है या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, कोई और स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड है, देखना ये होगा कि बच्चा एक जीटी क्राइटेरिया मीट करता हो। जीटी क्राइटेरिया मतलब उसकी एजुकेशन, उसका गैप नहीं होना चाहिए, गैप हो तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, उसने कुछ ना कुछ किया है, फंड उसके पास सॉलिड हो, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन सॉलिड हो, तो डेफिनेटली ऐसे बच्चे का वीजा आएगा और हर एक कंट्रीज के लिए वो बच्चा एलिजिबल होगा। और जो बच्चा ऐसा नहीं है जिसका लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उसका सिंगापुर है, साइप्रस है, यूरोपियन कंट्रीज है जहां वो जा सकता है। काफी बच्चे रिजेक्ट भी हो चुके ने कनाडा ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਪੀਪੀ ਦਾ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਏਗਾ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਦੇਖੋ ਐਸਪੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਪੀਪੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ जी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ एंटरटेन किया जाएगा। डेफिनेटली सर, स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देखी जाएगी। अगर आप रिजेक्शन के साथ हैं तो प्लीज एक बार अपना रिफ्यूजल लेटर जरूर ले आइए। अगर आप अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और स्टूडेंट क्वेश्चनिंग फॉर्म होती है जो आपकी एम्बेसी में फिल मतलब जो सबमिट होता है, अगर उसके भी अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो जरूर एक बार मिलिए अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आइल्स, रिजेक्शन और फाइल के साथ। देखा जाएगा कि किस बिहाफ पे आपका रिजेक्शन आया है। अगर एसपीपी में आपका रिजेक्शन है तो हम उसको जेनरिक या यूनिवर्सिटीज में अगर आप एलिजिबल होगी तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਵੈਨਿਊ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੇਟਸ ਨੇ ਜੀ 4 ਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਮਈ ਜਲੰਧਰ, 6 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ 7 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਪਤ ਹੋਈ ਗੁਆਚੀ ਯੂਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ है। की कहना, यूके बारे भी क्वेरीज बहुत ने, बच्चे जाना चाहते हैं यूके के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार वेन्यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो सर स्क्रॉल चल रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा 4 तारीख को मैं अमृतसर आ रहा हूं, तो होटल कंफर्ट इन है रणजीत वेन्यू में, वहां पे आपको 11 से 5 में मिलूंगा अपनी पूरी डेडिकेटेड टीम के साथ। इसके अलावा 5 तारीख को जलंधर होटल रेजिडेंसी है, 6 तारीख को लुधियाना ए होटल पड़ता है, 11 से 5 वहां पे होंगे, फिरोज गांधी मार्केट में है। इसके अलावा पटियाला में 7 तारीख को दिन शनिवार है, 11 से 5 लीला भवन चौक पे गोपाल स्वीट्स है, उसके 3rd फ्लोर पे हम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं यूके की। सर यूके में वीजा कंटिन्यूसली आ रहा है, पीछे कुछ टाइम बंद रहा, लेकिन अब वीजा लग रहे हैं। विदाउट आइल्स भी है और विद आइल्स भी है। विदाउट आइल्स वो बच्चा जा सकता है जिसकी लास्ट एजुकेशन 60 और 65% मार्क्स है। अगर बच्चा 12th है तो 60% मार्क्स, और इंग्लिश में भी उसके 60% मार्क्स है, तो विदाउट आइल्स वो एलिजिबल है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उसके 65% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। बच्चे कह रहे हैं बच्चा भी आइल्स अलग कर दिता गया जेड़ा यूके वास्ते, कुछ ऐसा सिस्टम होया? सर 2 आइल्स होती है, एक आईडीपी ब्रिटिश की और एक यूकेवीआई की आइल्स है। अगर यूकेवीआई वाली हो तो 5.5 बैंड पे भी एलिजिबल है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो ब्रिटिश काउंसिल है चलो वो यूके का पार्ट है, लेकिन यूकेवीआई एम्बेसी की एक उन्होंने अलग से रखी है, उसके अगर 5.5 बैंड है तो स्टूडेंट सफिशिएंट है। अदरवाइज जो बच्चा ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी से जो नॉर्मल है अगर वो करता है तो 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है। आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ यूके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? सर देखिए मैं अगेन वही कहना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटीज को में जाइए, क्योंकि कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेज हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जैसे पीछे आई थी। मैं अभी नहीं कह सकता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब ना तो इतनी सुनामी आ रखी कि भाई हर एक बच्चा यूके जा रहा है। उस टाइम तो सर सुनामी आ गई थी, हर दूसरा बच्चा जो मतलब गैप वाला है वो भी पहुंच गया, जो गैप वाला नहीं है, जिसने पढ़ना है जिसने नहीं पढ़ना सब पहुंच गए। उस टाइम तो ऐसा काम था कि अगर किसी से पूछते थे भाई जयप्रकाश कहाँ पे है, कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, एक हफ्ते बाद पूछा जयप्रकाश कहाँ है, बोला मैं लंदन बैठा हूँ, तो इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? उस टाइम तो ये बुरा हाल था कि वीजा सबके आ रहे थे। अब वो चीजें नहीं है, इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। जब आप इंटरव्यू सारे वीएफएस में जब आप जाओगे, फाइल आपकी जब ऑनलाइन सबमिट होती है तो जो डेट लेते हैं तो वीएफएस आपका क्या नाम है, एक स्काइप पे एक आपका इंटरव्यू लेगा और उसकी सीडी बन के वो फाइल में लग के एम्बेसी में जाती है। एम्बेसी को लगता है कि वीजा देना चाहिए तो वीजा दे देते हैं, नहीं लगता रिजेक्शन भी दे सकते हैं। उनको लगता है कि इसको दोबारा बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए तो उसको दिल्ली भी हाई कमीशन में दोबारा जाना पड़ सकता है। यूके संबंधी भी प्रॉपर्ली जानकारी होती है डेफिनेटली सर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए,
यूके, यूरोपियन कंट्रीज, सिंगापुर, जहां के लिए भी आप एलिजिबल है, डेफिनेटली वी आर देयर ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ श्योर श्योर। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਬਟ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਹੋ नहीं पा रहे, पता नहीं होने किवें है या कर ही नहीं पा रहे। देखो दो चीजें हैं, कुछ तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास या स्टूडेंट्स के पास पैसे होते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि इसको मैंने किस हिसाब से इसको दिखाना है। सर एक ही गल है भी पैसे हैगे, उन्होंने ही नहीं पता पैसे नहीं पता होता। मैं बताता हूँ, एम्बेसी बोलती है कि अगर आप करंट पैसे दिखा रहे हो, सोर्स होना चाहिए। मैंने ऐसे कितने केस देखे हैं कि प्रॉपर्टी बेच दी पार्टी ने, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने, और वो पैसे अकाउंट में नहीं डाले। पैसे तो हैं लेकिन अकाउंट में नहीं डाले, तो कैसे चलेंगे? ठीक है, क्या करते हैं वो अकाउंट में से उठाए, इधर उधर दे दिए, किसी को हेल्प कर दी, किसी को ब्याज पे दे दिया। तो वो पैसा होना चाहिए। एक तो ये चीज नॉलेज नहीं, पैसा तो हुआ, आप भी मानते होगे कि पैसा है, लेकिन पता नहीं है कैसे। सेकेंडली होता क्या है, प्रॉपर्टी बिकती 10 लाख की है पेपरों में, लेकिन वो एक्चुअल में बिकती है 50 लाख की या करोड़ की। तो वहां भी दिक्कत है। जितने की बिकी है, जितने की रजिस्ट्री हुई, उतने चलेंगे। अगेन पैसे तो है, लेकिन सोर्स कितना है सर? 10 लाख। जितने का 10 लाख का। LIC हर किसी के पास मोस्टली होती है। अरे भाई मेच्योर होने वाली है, उसको सरेंडर कर दो, शेयर पड़े हों उसको बेच दो, पर्सनल लोन ले लो, कृषि लोन ले लो, प्रॉपर्टी लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो। अब ऑप्शंस हैं, लेकिन पता नहीं होता। किसी के पास कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, वो उस पर लोन ले सकता है, बैंक एक टांग पे खड़ा होकर देगा। लेकिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को नहीं पता, वो सोचते पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी बला होगी, लोन लेने वाली बात आ गई है, तो समस्या है। मेरे लास्ट शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, तुसी कर दो। वो आया मेरे पास वो स्टूडेंट्स, मैंने उसके पेरेंट्स का फोन आया, मैंने उसको बोला जी आपकी प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, आप एक काम करो, फलाना बैंक आपको दे रहा है, SBI बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक, ये सारे लोन दे रहे हैं, आप जाओ, वो बच्चा जाके आज अपना लोन करा भी रहा है अब, ठीक है। वो डर रहा था, अब वो करा रहा है। अच्छा, सेकेंडली स्टडी पाथवे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। स्टडी पाथवे उसमें क्या है कि स्टूडेंट 5 साल तक का वीजा ले सकता है और विद लो बैंड स्कोर भी जा सकता है। जहां 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, बच्चे किसी में 5 से नीचे रह गए तो वो भी जा सकता है, 5 बैंड वाला भी जा सकता है स्टडी पाथवे में। जहां 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, 5.5 वाले के साथ भी जा सकता है, सेम एज इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश कोर्स। तो वहां भी सिर्फ 1 साल के फंड दिखाने हैं। तो बच्चे इस तरह से भी मिसगाइड है कि 32 लाख, 30 लाख, 25 लाख कहां से दिखाने हैं? आज की डेट में स्टडी पाथवे में दिखाने ही नहीं, 15-16 लाख रुपए सिर्फ फंड्स दिखाने हैं। नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। अब प्रोजेक्ट प्लान में कंसल्टेंट्स को नहीं पता था प्रोजेक्ट प्लान का मतलब क्या है, एम्बेसी किस टाइप का प्रोजेक्ट प्लान लेगी, ना स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पता है। तो ये सेमिनार्स में सारी चीजें बताई जाएंगी कि भाई आपके पास एक्चुअलिटी में क्या है, बट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बताना पड़ेगा उसके पास क्या है। जिसकी सॉलिड ITR है वो प्रोजेक्ट प्लान बन सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग है वो प्रोजेक्ट प्लान बन सकता है जी, कल को इस पर लोन ले लेंगे या इसको बेच देंगे, ठीक है। और कोई शेयर्स है, कोई रिटायर होने वाला है, ठीक है, वो पैसा आने वाला है, LIC का पैसा आने वाला है, तो ये प्रोजेक्ट प्लान हैं सारे। तो सर पैसा है पार्टी के पास, उनको पता है उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए लगाने हैं या 15 लाख रुपए लगाने हैं है, तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उनको ये नहीं पता कि ये दिखाने कैसे हैं। और एजेंट इसी चीज के 5-5, 7-7% ले लेते हैं पार्टी से। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫੰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ USL स्टूडेंट्स ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ गाइडेंस रहेगी डेफिनेटली सर। यूनिवर्सिटीज हम एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं USA में, और डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है, उसमें प्रॉपर काउंसलर्स और डेलीगेट्स मिलेंगे। अगर आप एलिजिबल होंगे तो डेफिनेटली आपको इनरोल किया जाएगा, अदरवाइज हम आपको मोटिवेट करेंगे कोई और कंट्री, क्योंकि US एक ऐसा कंट्री है जिसमें सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है, इंटरव्यू बेस्ड है। लेकिन मैं मोटिवेट करूंगा, प्लीज जरूर आइए। दौर ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ स्टूडेंट फुल टाइम वर्क परमिट। सर मैं देखी ऐड मैंने देखी है सर, मैंने देखी है, मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन
बोलते हैं ये आज का जो टाइम है ना कि एक चीज बोलते हैं कि पागल बनाने वाला चाहिए, ठीक है, पागल दुनिया बनती है, वही काम हो रहा है, वो पागल बना रहा है, दुनिया पागल हो रही है, ठीक है कि ਸਰ जिसको ਉਹ जो ਚ need है, जिसको जाना है, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। सर एक भी 99% मैं कह रहा हूं, कोई एक भी कंसल्टेंट आकर ये दिखा दे मेरा वीजा लगा, स्पाउस वीजा, ठीक है, मतलब स्पाउस आप लगा सकते हो, ऐसे तो यूएसए भी स्पाउस है, F1 F2 वीजा, लेकिन लगते कितनों के हैं? इस तरह से करके क्या हो रहा है आज की डेट में मार्केट में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्यों? सर 2 लाख रुपए दे देना। वजह की अभी मेरे कल ऑफिस में बैठा एक बंदा आके तो बोला जी पुलिस वाले का लड़का, और मतलब साथ में क्लोज बंदा, मेरे उनका क्लोज, मेरा भी क्लोज था, साथ आया, एक ऑफर लेटर लेके आया, 63% मार्क्स, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और CIC कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज का ऑफर लेटर दे रखा उसको, ठीक है। मैंने कहा जी देखो ऑफर लेटर तो आ गया, मैं भी मंगा दूंगा, लेकिन इस पे वीजा नहीं आएगा। बोला जी क्यों नहीं आएगा, ऑफर लेटर तो आया। मैंने कहा जी आज का जो फैशन चल रहा है, फैशन के हिसाब से चलोगे तो वीजा आएगा, मतलब जो आज का दौर है दौर के हिसाब से चलो, ठीक है, अदरवाइज दूसरे दौर के हिसाब से चलोगे तो रिजेक्शन आएंगी आएंगी। उसी टाइम मैंने स्टूडेंट्स की कॉलेज में बात कराई, वो बोले ठीक है जी हमने ऑफर लेटर दिया है बट हम वीजे की गारंटी नहीं ले रहे। कॉलेज भी बिजनेस कर रहे हैं, एजेंट भी अपना बिजनेस कर रहा है, वो बोले जी 12 लाख रुपए में आप मेरे से सेटिंग कर लो, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। मैंने कहा सर ऐसा है आपसे 12 लाख में 2 लाख रुपए एडवांस ले लेगा, ठीक है, सब कुछ सारी चीजें करेगा, ऊपर से फीस आपकी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, फीस सारी 4-5 लाख रुपए है, और वीजा आना नहीं है, आपने फीस आगे भेज दी वो भी कट के आएगी, ठीक है, जो आपने 1-2 लाख रुपए और दे दिया किसी की जेब में डाल दिया वो आपको मिलना नहीं है, 3 लाख रुपए की आप चपेट में आ जाओगे, चाहे आप पुलिस में SHO लग रहे हो, चाहे ASI लग रहे हो, चाहे आप एक हवलदार हो, लेकिन कल आप ऐसे रगड़े में आओगे, कोई फायदा नहीं है। तो उसकी बात समझ में आ गई, बोले जी मैं कहाँ के लिए एलिजिबल हूँ? मैं एलिजिबल तो आप कनाडा के लिए भी हो, एलिजिबल आप क्या नाम है न्यूजीलैंड के लिए भी हो, USA के लिए भी हो, बट डिपेंड करता है कि वीजा कहाँ का आएगा, दैट इज द मेन थिंग। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए आज की डेट में आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि आपके 63% मार्क्स हैं। ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਂਟਰੀ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, 5 ਮਈ ਜਲੰਧਰ, 6 ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। Hi, my name is Amit and I am from Chandigarh. I have completed my BTech in 2015 and after that I wanted to go abroad. So मैंने गूगल में सर्च किया फॉर बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विस इन चंडीगढ़ एंड उसमें वेस्टर्न ओवरसीज़ का नाम आया एंड मैं यहाँ पे आया फॉर अ काउंसलिंग सेशन एंड बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। देन मेरे आइल्स में 6.5 ओवरऑल बैंड आए थे, तो फिर मैंने वेस्टर्न ओवरसीज़ से ही अपनी कनाडा की फाइलिंग प्रोसेस शुरू कर दी एंड विद इन 10 डेज़ मेरा कैनेडियन वीज़ा आ गया था। एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ वेस्टर्न ओवरसीज़ आके एक बार काउंसलिंग सेशन अटेंड करें, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रमनदीप बेदी है, मैं सरहंद तो बिलोंग करना, तो मैं अपनी आस्ट्रेलिया की फाइल वेस्टर्न ओवरसीज़ तो लाई है, तो मिस्टर प्रदीप बल्लन की हेल्प मेरा वीज़ा 10 डेज़ के विच आ गया। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन्होंने मीट करो फॉर वीज़ा गाइडेंस। हाय, मेरा नाम मनदीप कौर है, मैं बठिंडा तो बिलोंग करती हाँ। मैं बहुत सारे कंसल्टेंट को मिली बट वेस्टर्न ओवरसीज़ मैंने सब तो वधिया लगे ने। इन्हों की काउंसलिंग तो इन्हों की वे ऑफ टॉकिंग तो मैं बहुत इंप्रैस हुई हाँ, तो इन्होंने मेरा विद इन 15 डेज़ न्यूजीलैंड का वीज़ा लिया के दिता है, तो मैं तो बहुत थैंकफुल करती हाँ, तो अपने सारे फ्रेंड्स को सजेस्ट करती हाँ भी वो इन्हों तो ही अप्लाई कर, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट कंसल्टेंट इन द पंजाब। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अंश है, मैं अम्बाला से हूँ। मैंने वेस्टर्न ओवरसीज़ से अपना वीज़ा अप्लाई करा था ऑस्ट्रेलिया के लिए और मिस्टर प्रदीप बाल्यान के एक्सपर्ट एडवाइस और हेल्प से मेरा वीज़ा 7 डेज़ के अंदर अप्रूव हो गया। मैंने अपनी आइल्स की कोचिंग भी वेस्टर्न ओवरसीज़ से ही करी थी और जो मेरी +2 की प्रोफाइल थी वो उसके अंदर मैंने अपनी +2 वो नेशनल ओपन से करी थी और 72% मेरा स्कोर था और आइल्स में मेरे 7 बैंड्स थे, उसकी मैंने यहीं से तैयारी करी थी वेस्टर्न ओवरसीज़ से ही और मिस्टर प्रदीप बाल्यान की हेल्प से मेरा वीज़ा 7 डेज़ के अंदर अप्रूव हो गया। और अगर आपको कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आपको भी यहाँ पे आके मिस्टर प्रदीप बाल्यान से कंसर्न करना चाहिए। थैंक यू।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।